आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। कहाँ से आए आप? मैं जर्मनी से आया हूँ। ये भाई 25 साल से आप बता रहे कि आप जर्मनी में 25 साल से आप वहाँ पे रहते हैं। हाँ 25। तो आपकी टेस्टमनी कि 20 साल पहले आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। तो खुलकर अपनी गवाही बताएं लोगों के सामने कि कैसे वो आपका नशा स्टार्ट हुआ, कैसी लाइफ थी आपकी? मैं जी 2001 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ ਸੀ। कौन सा ब्रदर आप नशा करते थे वहाँ पे? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਬਸ। आप बता रहे कि दिन में 2-2 बोतलें शराब, 20-20, 15-15 बोतल आप बियर की पी लेते थे। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 15-20 ਬੀਰਾਂ ਤੇ 2-3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। बाकी आप बताएं सिस्टर कि आपके हस्बैंड की लाइफ कैसी थी? ये बता रहे हैं कि दिन में की शुरुआत इनके नशे के साथ होती थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਅਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 10,000 ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ये बता रहे कि इनकी बॉडी कांपने लग जाती थी एकदम से, इतनी तलब ही नहीं लगती थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। और ये बता रहे कि नशे के साथ साथ ये भाई आपके हस्बैंड ने जो पाप में भी चले गए थे। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਭਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ। तो आप बता रहे कि सिस्टर ये इतनी ज्यादा ओवरडोज लेते कि ये इनकी बॉडी बीमार रहना शुरू हो चुकी थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। अब बता रहे कि इसके कारण इनका लीवर जो खराब होना शुरू हो चुका था। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਵਰ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। तो कई बार आप बता रहे कि इन्हें जर्मनी में इन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ कि क्योंकि जर्मनी में ये नशा छुड़ाऊ केंद्र जो वहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जो बने होते हैं सेल्स वगैरह, तो वहाँ पे रहे 3 बार वहाँ पे गए। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹ हॉस्पिटल 3 में ਵਾਰ भी एडमिट रहे। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ। मतलब कि इतने मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद वहाँ पे भी जाने के बाद, लेकिन ये बिल्कुल नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂ मैं, है ना। बल्कि ये बोलते कि आप बता रहे कि आपके हस्बैंड इतना ज्यादा नशा करते कि जीने की उम्मीद उन्होंने पूरी तरह छोड़ दी थी। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਰਮਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਰਿਸ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ जान देन अपनी। तो आप बताएं ब्रदर, आपने कभी कोशिश की इन चीज़ों से बाहर आने की? हाँ ब्रदर, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की थी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ नहीं मिलता ਸੀ। फिर मैं खामरा चर्च ਵਿੱਚ आया ਤੇ नहीं, आपको यहाँ के बारे में, अंकुन रिलम नशे के बारे में कैसे पता चला आपको? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं तो उसके बाद आपने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने शुरू की लगातार। आपकी वाइफ आपको चर्च के बारे में बताती रहती थी, वचन आपको देती रहती थी। उसके बाद बता रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो आइए कलीसिया पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे, आउट करेंगे। मतलब जैसे हमने भी सुना कि जैसे परमेश्वर के दास नशे की आत्मा को डांट रहे थे, तो आप उस समय ऑनलाइन देख रहे थे मीटिंग को। तो आप बताएं कि जैसे आपने उन वर्ड को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ जीवन में फिर। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। परमेश्वर ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ नशे तो मुक्ति मिल गई। अच्छा, पूरी तरह से चेंज है। आज मैं अब कोई नशा नहीं करते आप? अब मैं कोई नशा नहीं करता। लाइफ पूरी तरह चेंज है। मैं आज से कोई नशा नहीं करता हूँ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मैं 1.5 साल हो गया मैनू। मैं कोई शराब नहीं, कोई बियर नहीं, कोई नशा नहीं किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं सिस्टर, अब आपके हस्बैंड कैसे? आप बता रहे कि आपकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। जी ब्रदर जी, टोटली डिस्टर्ब सी। मतलब मैं बहुत ज्यादा रोंदी हुंदी सी वही, मतलब मैं दस नहीं सकती ब्रदर। मैं इन्नी ज्यादा परेशान सी ना। तो उसके उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या बदलाव है अब लाइफ में? जी ब्रदर जी, हुण तां बहुत ज्यादा बदलाव है। जिद्दां ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ मतलब फाइनेंस तौर पे परमेश्वर ने सानू बहुत ज्यादा ब्लेस कर दिया है। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिंग थैंक यू जीसस फॉर हिज सब्जेक्ट। इन हफ्तों में उन्हें चर्च में लेके आए। जैसे आपके परिवार के मेंबर चर्च में एंटर करेंगे, जैसे इस भाई को परमेश्वर इस दोनों को अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़ा किया, अब इसी तरह अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होकर यीशु के सामर्थ्य नाम में शर्मिंदगियां खत्म होंगी। आपके हाथ में आपके टेस्टिमनीज होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश। कहाँ से हैं आप? टीकमगढ़ जिला से। ऐसे हैं, कौन कौन सा नशा करते थे? मैं नशे के भी- कारण मैं आपकी हालत कैसे थी? दारू भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, गुटखा भी खाता था और गांजा भी पीता था सर। ये नशे कैसे आए थे आपके? यार जाओ दोस्तों के साथ। उनके साथ मिलके दोस्तों के आपने नशा करना शुरू किया। जी। कितना नशा एक दिन में करते थे? 1 बोतल दारू भी पी जाते थे, 2 गुटखा पैकेट भी खा लेते थे। आप नशे बढ़ रहे थे आपके। जी। भांग का नशा किया आपने जी। और चर्च गांजा ये सब नशे आप करते थे। सारे नशे किए हैं मैंने। नशे के कारण आपकी जिंदगी में क्या हो रहा था? हालात कैसे थे? घर का माहौल कैसा था? मैं नशे के कारण से पागल हो गया था। नशे के साथ साथ आपने जुआ भी खेला है? जुआ अभी खेला, मैं पागल भी हो गया सर। जब आप पागल हुए तो पागल हो गए तो मेरे को ग्वालियर गाड़ी में बांध के ले गए मेरे घर वालों, और मैंने वहाँ डॉक्टर को लात भी मार दी मैंने वहाँ। और सिस्टर आप बताएं कि जब ये आपके हस्बैंड है जब पागल हुए तो क्या करते थे? उस समय इनकी हालत कैसी थी? सर जी ये बोलते थे कि मारते थे घर वालों को, घर से भाग जाते थे, नींद नहीं आती थी बिल्कुल, और घर वाले को मारते थे, भाग जाते थे, और हम लोग पकड़ के ले आते थे। लोग क्या कहते थे उस समय? लोग ये बोलते थे कि अब ये पागल हो गया, अब ये ऐसे ही रहेगा। और आप घर का माहौल पूरा खराब हो चुका था? पूरा खराब हो गया था पिताजी। डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर क्या कह रहे थे डॉक्टर ये बोलते थे कि सारी उम्र दवाई खाने पड़ेगा और ये ठीक नहीं होंगे, ऐसे ही नहीं। रहेंगे? हाँ यही बोलते थे डॉक्टर कि ये ठीक ना होगा। आपके हस्बैंड अकेले घर में कमाने वाले थे जब हाँ, ये हाँ जी। पागल हो गए थे? हाँ। तो घर में खाने पीने की बहुत सारी चीजों की तकलीफें, बहुत तकलीफ हो गई थी शायद जी। 1-1 रुपया के लिए हम लोग तरस गए थे। और डॉक्टर बोल रहे थे इलाज करवाओ, तो आपके पास इनके इलाज के लिए पैसे भी हम नहीं। लोग
पैसा नहीं थे तो उधार किसी से कर्जा लेके ले जाते थे अस्पताल में। जब ये पागल हुए तो क्या क्या करते थे ये? एक मारते थे, गाली गुलाच, घर में से हम उनको निकाल देते थे और रात में नींद नहीं आती थी, सारी रात ऐसे फेरते रहते थे घर में। कोई सुध बुध नहीं थी ना खाने की, ना खाना खाते थे, ना नहाते, ना कुछ भी नहीं करते थे। और सब लोग कहते थे कि ये पागल हो चुका है, हाँ ये नहीं सर, ठीक होगा। हाँ बिदर यही बोलते थे कि ये अब कभी ना होएगा ठीक। आपके मन में उस समय क्या चलता था फिर? तो हम रोते रहते थे, सोचते रहते थे कि कहीं हम कोई ठीक कर दे तो हम लुआ जाएं, तो कहीं जगह भी लुआ गए, कहीं ठीक नहीं हुए। बहुत सारी अन्य जगहों पर हाँ गए जी, पर कहीं हाँ से जी, आराम नहीं मिला। नहीं। और आप खुद लोगों से मांग कर घर का गुजारा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो बहन आप बताएं, चर्च के बारे में कैसे जाना, आप कैसे प्रभु की हजूरी में आए? वहाँ एक भाई ने, विधर ने बताया कि तुम खामरा चर्च जाओ, तो ये आए थे जो 2023 में आए थे यहाँ। और आप फिर लगातार अपने हस्बैंड को लेके चर्च आए? नहीं सर जी, फिर तो आए नहीं है, फिर तो हम वो मीटिंग सुनते रहे ऑनलाइन। 7 नवंबर 2024 को ये जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। इस बहन का विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पति को ठीक करेगा। ये ऑनलाइन मीटिंग को रिसीव कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो इस ऑयल को लगाते ही डिलीवर हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिनके अंदर तरह तरह के रोग और बीमारियां हैं वो इस ऑयल को लगाते ही यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएंगे। वो लोग जिनके अंदर शैतानी चीजें, एलिमेंट्स, उस ऑयल के लगाते ही वो सारा डिपॉजिट बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हजारों टेस्टिमनीज को बनता हुआ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप बताएं, जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ था उस समय फिर आपके हस्बैंड को? एक बिल्कुल खेलने लगे थे, नीचे खेलने लगे थे बिल्कुल, और वह खेलते खेलते उल्टी आई, का उल्टी उल्टी होती नहीं बिल्कुल, और वोमिटिंग आई, उल्टियां आई इनको। हाँ। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसी के दिन से बिल्कुल गुटका मुटका सब नशे से सब आ जा, सब छूट गए बिल्कुल। और उस दिन जब उल्टी आई तो इन्होंने, जब इनको होश आया तो इन्होंने आपको पहचाना? हाँ जी, क्योंकि पहले परिवार वालों को, फैमिली को, किसी को पहचानते नहीं थे। पहचानते थे। और उस दिन से ये उस पागलपन से और गुटका मुटका सब बिल्कुल छूट गया। सब जोर से तालियों के साथ चर्च हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हैं उस भाई को जो नशे के कारण जुआ खेलते थे, नशे की वजह से पागल हो चुके थे, कोई सुध बुध नहीं थी, घर में परिवार वालों, फैमिली में किसी को पहचानते नहीं थे, झगड़ा करना, लोगों को मारना, डॉक्टरों ने बोल दिया था ये पागल हो चुका, ये कभी ठीक नहीं होगा। जब परमेश्वर की हजूरी में आए, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ, खुदा ने अपने दास के द्वारा इस भाई को छुआ और इसे हील किया, और पुराने सालों पुराने नशे से, पागलपन के अटैक से आजाद किया है, बिल्कुल हील हो चुके हैं। कब से ये बिल्कुल ठीक है? कितने समय से ठीक है? अब ये 7 महीना हो गए, कोई अटैक नहीं है। कोई अटैक। अब घर का माहौल कैसा है? बिल्कुल सही है घर का माहौल। लोग कहते थे ये ठीक नहीं होगा, ये पागल हो चुका है। हाँ, तो अब वो इनको जब देखते हैं ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, क्या कहते हैं? बोलते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ तुम ठीक हो गए, तो हम बोलते हैं कि खामरा चर्च में गए थे तो वहाँ ठीक हो गया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों का, आपके केसेस का हल जीवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं पूरी लाइफ ऐसे रहेगा, नहीं ठीक होगा। जब खुदा ने छुआ, हील किया, उस मेंटल अटैक से, पागलपन के उन दौरों से खुदा ने इस भाई को हील किया, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, आनंदमय जिंदगी दी है। थैंक यू जीसस बोले, होठों को खोदो, एक चर्च ऑनलाइन ब्रांचिंग, जहां से भी आप इस खुदा जीवंत हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा यूपी की रहने वाली हूँ। 14 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ ब्रदर। आप बताएं उसके बारे में, सारा कुछ के क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से आपको? 14 साल पहले किसी ने मेरे घर पे जादू टोना कर दिया था, तो घर पर कील, सिंदूर, राई और लड्डू ये सब घर पर पड़े हुए मिलते थे,
और मेरे बाल कटे हुए और मेरे नए नए कपड़े घर से चोरी हो जाते थे। फिर क्या हुआ, फिर से धीरे धीरे मेरे बॉडी वीक होने लग गई, सर में दर्द होने लग गया, धीरे धीरे दवा खाती थी पर उसका असर भी कम होने लग गया और डिप्रेशन बढ़ता चला गया। फिर पढ़ाई में भी इसके अकॉर्डिंग कमजोरी आने लगी, मतलब पढ़ाई में भी वीक हो गई, मतलब दर्द बढ़ता चला गया, डिप्रेशन के अटैक आने लग गए, रात को डरावने सपने आने लग गए कि कोई मुझको पीछा कर रहा है, मैं भागती थी और कोई मुझे मारता था, और रात को मौत के अटैक आते थे, कंटिन्यू डिप्रेशन के अटैक आते थे। मैं घर पे किसी को बता नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं हमेशा चुप चुप रहती थी, किसी से बात करना पसंद नहीं था कि मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं क्यों नहीं सक्सेस हो पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये मौत के अटैक कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। और आपको लगता था कि कोई आपको बालों से खींच रहा है? हाँ, और मेरे बाल इतने भारी हो गए थे कि मैं उसको सर में दर्द होने के बाद कभी सर ठोकती थी तो कभी बालों को खींचती थी। फिर क्या किया आपने अपने बालों के साथ उसके बाद? फिर मुझे इतना भारी लग रहा था तो मैंने खुद ही अपने बाल काट दिए। फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ती जा रही थी, खाना अंग नहीं लग रहा था, कुछ भी खा रही थी अंग नहीं लगता था, जबकि घर पे हेल्थी खाना खाती थी फिर भी। ये आपकी फोटो है? हाँ, ये मेरी फोटो है 2 साल पहले की। 2 साल पहले आप अपने सभी बाल अपने आप ही काट लिए आपने? हाँ। ऐसा क्यों किया? वो सर इतना भारी हो जाता था कि मैं बस आराधना करती थी और अपने सिर को ठोकती थी और बालों को नोचती थी कि ये दर्द क्यों नहीं जा रहा है, इतना डिप्रेशन हो गया था मुझको। और शरीर इतना कमजोर हो गया था, आप पूरी तरह बेड पे चले गए थे। हाँ। तो देख रेख कौन करता था, संभालता? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना, इधर उधर जाना, कौन? मम्मी और भाई। और अपने आप नहीं चला जाता था आपसे? हाँ, एक टाइम ऐसा आया कि मुझ पे नहीं चला गया। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव लोग, रिश्तेदार जो आपको जानते थे, ऐसी हालत में देख के क्या बोलते थे आपको? वो कहते थे आखिरी टाइम है, तो मेरे भी जो भी रिलेटिव थे वो सब मुझसे आखिरी बार मिलने आ गए कि ये नहीं बचेगी अब। आपकी फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए आपको? हाँ, लेकर गए। क्या कहना था डॉक्टर्स का? ब्लड जब चेक किया तो ब्लड नॉर्मल आया, उसमें कुछ भी कमी नहीं आई थी। और आपको ये लगता था कि शायद मैं सारी उम्र इससे बाहर नहीं आ पाऊंगी? हाँ, मुझे जब यीशु को नहीं जाना तब मुझे ऐसा लगता था, पर जब पापा के वर्ड फॉलो करती गई। कैसे पता चला यहाँ का? मेरा भाई दीपक वो वीडियो देखता था तो उसने बताया कि तू इस तरह से कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन फॉलो किया कर, एक एक इंस्ट्रक्शन में फॉलो करती थी घर पर। क्या हुआ फिर, कैसे बदलाव जिंदगी में आया आपके? फिर जब पापा ने 20 अगस्त 2023 को पापा ने बोला सारी दुष्ट आत्माएं निकल कर जा रही हैं, उसी टाइम एक तेज आग मेरे प्राण पर लगी और बहुत तेज हीट हुआ, और उसी टाइम मुझे एक पवित्र आत्मा ने बहुत तेज छुआ, तो तभी से मेरा डिलीवरेंस होने लग गया और मैं आज्ञाओं को मानने लग गई, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग गई घर से ही। और आपके ऊपर लेहन प्रेयर भी हुई थी? हाँ, जब फिर हम यहाँ से यहाँ पर आए और 1 साल तक हमने प्रेयर मौसम में कंटिन्यू प्रेयर की, उसके बाद मेरा लेहन हुआ 12 नवंबर 2023 को। देखते हैं एक बार। यीशु से मिला, बंदे तो मुझे रूह से सदा सुन सको खुदा, छू ले तू मुझे, आज दे शिफा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। क्या हुआ उस लेहन प्रेयर के बाद आपके जीवन में? जब परमेश्वर का दास का सामर्थ्य जब मुझ पर पड़ा तो चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी, चारों तरफ से आग, और मुझे सांस भी नहीं ली जा रही थी, कंटिन्यू चिल्ला रही थी। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कंटिन्यू जुम्मस के साथ मुझको छुआ
और तभी से मैं ब्लेस्ड हूँ, आशीषित हूँ। वो अद्भुत किया है परमेश्वर ने, शैतान को हरा दिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर कोई से। नहीं कह सकता कि मैं बच पाऊंगी, और परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, मेरी हेल्थ को ब्लेस किया और मुझे यूं का त्यों कर दिया जैसे अय्यूब के साथ किया। हालेलुया। तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हैं सब जन। बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़े छुटकारे के लिए। बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज उन दुष्ट आत्माओं का, उन जादू टोनों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ छूटने के लिए, आजाद होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को, उसके नाम को ऊंचा करते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर जी मेरा नाम शरणजीत है, मैं ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਲੋਗੜ ਕੋਠੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਦਿਖਣੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਦਿਖਣਾ, ਗੰਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਗਲੇ ਸੜੇ ਫਲ ਦਿਖਣੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? ब्रदर जी मेरा मिसकैरेज 3 बारी हो गया। तो डॉक्टर के पास जब गए चेक करवाने के लिए, उन्होंने क्या कारण बताया इसके पीछे? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ। दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई आराम नहीं मिलता था? हाँ जी ब्रदर जी मैं दवाइयाँ खादियाँ पर मैंने कोई फर्क नहीं पिया, और मेरा भरोसा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। दिसंबर 2023 में आप 5वीं बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी ब्रदर जी। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में फिर से वैसा ही होना शुरू हो चुका था। हाँ जी ब्रदर जी, फिर ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਗਲੇ ਸਰੇ ਫਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर के पास गए, उसने चेक करके बताया कि बच्चे का जो हार्ट है वो प्रॉपर बना नहीं। हाँ जी ब्रदर जी। और जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰਾ ਮੰਥ ਆਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਣੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ये वाली प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तीसरे महीने भी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੰਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਕੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ। उस ली हैंड को फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं पहले। छोड़ ना जानो मेरे नाल खड़े, तेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। आप बताएं जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣਾ। ਤੇ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਲਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। कितने साल के बाद हुआ ये बच्चा? ब्रदर जी ये 10 साल बाद होया मेरा बेटा। बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाँ जी brother। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी, वो रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा पहुंच चुके हैं, तो आप तैयार हो जाओ। आज अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें ब्लेसिंग्स के लिए। तो आप बताएं सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली है, कहाँ से आए आप सिस्टर? कपूरथला। आपकी टेस्टमनी की जुलाई 2024 में आपके घर में खून के छींटे पड़े, तो उसके बाद एकदम से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, अटैक्स होने लगे। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी थी लाइफ आपकी? जी ब्रदर मैं जिदा मैडिकल फील्ड तो बिलोंग करदी हाँ, गवर्नमेंट एम्पलॉय हाँ और मैं जिदा ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ और फिर मैं अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ कॉल लाई और फिर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦਾ असर फिनिश हो गया सीगा और फिर दोबारा एंजाइटी अटैक स्टार्ट हो गए सी। आप बता रहे कि जब अटैक होते थे, जब आप सोते थे तो एकदम से आपको लगता था कि एकदम आप अंधकार में जा चुके हैं। जी ब्रदर, आपकी आवाज बंद हो जाती थी। जी ब्रदर मेरे बिल्कुल भी मेरे को बोलिया नहीं सी जाता और मेरी रात नू सुते हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती सीगी। तो आप एक स्टाफ नर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप बता रहे कि उसके कारण आपके जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ा। जी ब्रदर और मैनू इन्ना एंजाइटी अटैक दे करके डॉक्टर ने मैनू कंप्लीट रेस्ट ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। और फिर ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ और फिर ਦੁਬਾਰਾ रेस्ट तो बाद भी ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ बाद भी ਉਹੀ एंजाइटी अटैक्स हो रहे सी मैनू। तो सर आप डॉक्टर के पास भी गए, आपने ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन उसके बाद भी
वो अटैक जो बीमारी थी आपकी बॉडी में से खत्म नहीं हो रही थी। जी ब्रदर, और वो- मेरे को रात ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਰਕੇ, ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਤੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, पूरा दिन टायर्ड रहनी सी क्योंकि मेरी नींद नहीं सी पूरी हुंदी। तो बताएं सिस्टर, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी निराशा थी, इतना आप डरते थे, पैनिक अटैक होते थे, तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको फिर अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला फिर? जी ब्रदर, पहला तो मैं मेडिसिन ही खाती रही क्योंकि मैं जिद्दां साडे ब्लड दे छिट्टे आ इसी घर विच, मैं इन्हां चीज़ां दे विच ज़्यादा बिलीव नहीं सी करदी, पर मेडिसिन खाने के बावजूद भी मैनू आराम नहीं सी बिल्कुल भी मिल रहा। फिर मेरे मदर मैनू ट्यूसडे काउंसलिंग टीम दे कोल मेरी काउंसलिंग करवाने आए सी और उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया वाइट कार्ड। फिर 20 अक्टूबर मेरा ले हैंड किया मेरे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूल्ला जी ने। 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये हम पहले एक लिस्ट से उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। सिस्टर, जैसे हमने वीडियो में देखा कि प्रभु की दासी ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके सर के ऊपर आया, उसके बाद बताएं कि क्या एकदम से क्या हुआ, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ बहुत ही रिलैक्स फील होया, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया और बॉडी भी बिल्कुल फील रिलैक्स होया मैनू। और फिर ਜਦੋਂ मैं घर गई मैं विश्वास किया और मैं दोबारा अपनी जॉब ते अमृतसर गई। मैं सारिया मैडिसन अपनियां डस्टबिन दे विच सुੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ विश्वास के नाल, और उस ले हैंड तो बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? ब्रदर ले हैंड तो बाद बिल्कुल फ्री है, अक्टूबर तो बाद 3 महीने 17 दिन हो चुके बहन, पूरी तरह से आजाद है, कोई पैनिक अटैक नहीं, कोई दुष्ट आत्मिक अटैक नहीं। तो आप बताएं सिस्टर, आपकी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस्ड है? जी ब्रदर, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं आप? कोई मेडिसिन नहीं। आपका पूरा परिवार खुश है अब? जी ब्रदर, तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, बोले सब दिन ऊंचे आवाज के साथ हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और आपको नाश करने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए आया। जैसे इस बहन ने नए जीवन को पाया, वो आज आप उसी तरह नए जीवन को लेकर वापस जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पुरानी बातें बीती बात होंगी, वो डिप्रेशन बीती बात होंगी, आज के बाद एक न्यू लाइफ को लेकर वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करते जाए सबसे, थैंक यू जीसस बोले। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। और इसी तरह से का अर्चना कहाँ से हैं आप? यूपी से। अप्रैल 2023 में आपको हाई ग्रेड मतलब 104 तक बुखार रहना हाँ शुरू जी हुआ। ब्रदर, क्या हुआ था? टीबी का बीमारी है। हालत कैसी थी, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। हालत मेरी ऐसी थी, हम बेड पर आ गए थे ब्रदर, कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होता था? कुछ डाइजेशन नहीं होता था ब्रदर। फिर मेरे बहुत फीवर बढ़ गया, उलझन होती थी मेरे, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। मेरे से डॉक्टर दिखाए अपनी यूपी में 4-5 जगह, फिर दिल्ली में आया, दिल्ली में भी दिखाया, कोई हल नहीं मिला। डॉक्टर पे डॉक्टर देखते रहे, ना फीवर मेरा कम हुआ, ना कहीं हल ही नहीं हुआ दवाई से, डॉक्टर से। डॉक्टरों ने फिर कहा मेरी- था कि आपको लंग्स में टीबी का रोग हो चुका हाँ है जी ब्रदर, और वो दवाइयां दे रहे थे पर कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रदर। आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बेड पर चले गए थे। हाँ जी, दूसरे लोग जो आपको देखने आते थे वो क्या बोलते थे उस समय? वो बोलते थे अब नहीं बचेगी है। और आपको खुद को भी लगता था? हाँ, खुद को भी लगता था अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे 3 बच्चों को कौन संभालेगा। टॉयलेट वॉशरूम आप फैमिली पर पूरी तरह निर्भर थे, हाँ जी, वही आपको लेके जाते थे।
हाँ जी, और इस ब्रदर। बीमारी के कारण आपकी बेटी को भी ये रोग हो गया था हाँ जी ब्रदर, मेरे तीनों बच्चों को हो गया था यही रोग, सेम सेम। और दवाइयां दे रहे थे, उनकी हालत भी खराब हो रही थी। हाँ, खराब हो रही थी ब्रदर। तो फिर क्या आता था मन में कि अब क्या होगा मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ? क्या कुछ समझ ही नहीं आता ब्रदर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कहाँ ठीक होंगी। परमेश्वर फिर मेरे भाई ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, फिर लेकर आया है मुझे इधर। फिर मेरा पापा ने ले हैंड किया मेरे तीनों बच्चों का। फिर मैं हील होती रही। आज मैं बहुत बड़े प्रभु का धन्यवाद देती, मेरे प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। मेरा डॉक्टर सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। जीवन दिया। जब टीबी का रोग इस बहन को हुआ तो टोटली बेड पर चले गए थे। इन्हीं के कारण मुड़ के इनके बच्चों को भी वो बीमारी हो गई और देखने वाले कहते थे कि ये नहीं बचेगी, मर जाएगी, और इनको भी लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी। हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर जब चर्च के बारे में जाना, चर्च आए, विश्वास बढ़ता गया। 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। भर दे तू मुझे रूह से सदा, आखिरू मेरे यीशु से मिला। और जैसे बहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और वो बीमारी, वो रोग जिसके चलते आपको लगता था मैं मर जाऊंगी, हाँ जी। बच्चे बीमार हो चुके थे, सबको टीबी का रोग हो गया था, परमेश्वर ने छू के आजाद किया है। हाँ जी ब्रदर, कितने समय से बिल्कुल ठीक है हम? 1 साल हो गया ब्रदर। सब हाँ। कुछ नॉर्मल हो चुका है। हाँ, सब कुछ नॉर्मल। आज मैं खड़ी हूँ, प्रभु की बहुत बड़ी दया है। हाथों को उठाते हुए चल, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस बोलते हुए।